Good morning to one and all. Today I would like to introduce Professor Divya Tawar, Director, Sanskriti University, Chairperson, Divya Foundation and Vice President of Indo-American Business Chamber of Small Medium Enterprises, to deliver an expert webinar on a very energetic topic, we can say, or the topic which suits the current strain, the employability challenges post COVID-19. If I talk about the brief profile of Professor Divya Tawar, she has done PhD in computer science, MTech, MPhil, MBA and MCA, and a two professional having more than a decade experience in the field of teaching and research in the field of computer science. She has been a source personnel in the field of education. She has led a team of people involved in the program that enhance the quality of education, incorporating progressive systems and process in the key areas and function of schools, curriculum planning and designing of many things. She is one of the prominent educationalists, one of the popular name in her region. We welcome Professor Divya Tawar to spare her valuable time to give us the insight about the topic which is based on the employability, which is related with the student employment, which is related in the current scenario that after COVID-19, what kind of things will happen in the future. So we welcome behalf of whole Gitanjali family. And with this word, I would like to invite our director sir, Dr. Vikas Mishra sir, to give away the welcome address and initiate the expert webinar today. Sir, over to you. Yeah. Thank you, Arvind. Am I audible? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, fine. Thank you. Yeah, good morning, everybody. And good morning, Divya ma'am. Good morning, sir. Good morning. Namaskar, sir. Good Namaskar. morning. Namaskar, ma'am. So, friends, today it's indeed my privilege and honor on behalf of Gitanjali family to welcome Professor Dr. Divya Tawar ma'am for giving his time to address to all of us, to our faculties, to our students on a very relevant and very pertinent topic about employability skill. And as now I can very rightly say, whatever Arvind has briefed about ma'am, he has shared me very less once now when he was reading the profile of ma'am, a multi-talented, multitasking person. In spite, and I sincerely appreciate, and that's what great people or great leaders inspired by their action, and in spite of being into full-time academics, she is associated with various forum, chairperson of forum with Indo-American Business Center. So, ma'am, sincere thanks on behalf of kids that you have spared your time today to address to our students and to faculties. And as this current situation, we all are aware, and now I'm of very strong opinion that now we should come out, we should stop talking about COVID and Corona, because now we have to live with it. And now we have to find out the ways that life has to move on. And when it comes about employability, obviously I am a very firm believer that there is no scarcity of employment. It's basically up to an individual how efficiently, how smartly any individual, particularly in terms of youth, the students, the college, the school going kids who are at the edge of pass out, in what way they are going to add the skill set. And apart from, we can add now one more concept, that the Darwin concept, we are aware that survival of fittest. Apart from, now we can say survival of, apart from fittest, we can add survival of smartest, who is more smart, and survival of quickest. How one can very quickly adopt and change their operation sets of skills with the current environment. With this environment, as we all are aware,
there is going to be a huge opportunity of employment also in terms of entrepreneurship, also in terms of job employment from industry side also. India has emerged as a very huge potential market for manufacturing hub, and now not many things will be taking place more aggressively into manufacturing. So medical healthcare is an area where probably it's going to generate a lot of employment opportunity. Rural sector is the sector because of the shifting of migrant laborers to their respective states. All states are now forced to start operations or generating employment activity at the district level. So small scale SMEs, lot many SMEs will be coming, lot many work on rural infrastructure, on urban infrastructure is going to take place. Healthcare is a very major area where lot many employment opportunity, and as we have seen, this era has brought all the technologies together. Although being into technical person, we are better aware that technology is all about interdisciplinary. But now world has also realized that there is no such, no branch can work in isolation. It's a mix of either engineering or biomedical and all those. There has to be a combination of fusion of technology, which is going to take a huge employment generation. Government of India has taken a lot of initiative in terms of finance minister has given the packages and the plans in terms of various policies where government of India has tried to create that ecosystem more flexible, more agile, so that any individual who is going to start their manufacturing activity or an entrepreneurship. Entrepreneurship is an area where I see lot many startups will be coming, lot many new ventures will be coming, and it's a very good opportunity for youth, for students also. As a student, you are watchful, but you have to be very curious also. You have to see what are the problems, what are the emerging areas where you can contribute. That's why I have used that word, smartest and quickest. How fast one is able to recognize the areas where technology, where MBA student, where commerce student, it's all about bringing a same level of understanding and then creating a solution. So I look forward that employment is not going to be a challenge, but yes, developing skills is most important. And trust me, industry is certainly going to ask to all the youth that how, in what way you have utilized this lockdown period, whatever 2-3 months, and now all activities have started. We are into very active process of unlockdown. Now we are into 2.0. So industry is also going to evaluate every individual, every professionals that what are the skill set, what is the reskilling, what is the upskilling one has done to their respective profiles. So my advice to all that also focus on your skill, identified your areas, and I'm sure and I'm glad that our students have worked very rigorously on upskilling and reskilling both, where they have added lot many technical attributes. Soft skill is an area I'm sure ma'am will be touching on that, which is going to play a very major role apart from your techno commercial knowledge. I'm not going to take much of the time since we are here to listen the words of wisdom and the inputs and direction from Professor Divya ma'am. Once again, ma'am, welcome you and sincere thanks that you have given your time today to address all of us. Thank you very much. Over to you, Arvind. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot for giving me this introduction. And thanks a lot, Arvind, sir, for everything, giving me this honor. Thank you, sir. Thank you. So, Pleasure. Ji, sir. Yeah, Thank over to you, Arvind. Over to you, Arvind. you. Yes, sir. Thank you very much, sir, for the welcoming address. And now I will not take much of the time of all the participant, because now the forum will be handed over to the expert of today's, Professor Divya Tawar, to take the session ahead and enlighten us with her wisdom of words. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. Hope you all are fine. And thanks a lot, Arvind, sir, and the director, sir, for giving me this opportunity. So, the topic of today, the most important topic nowadays, what is all about placement employability. We all know that we are facing a
huge slowdown. There are the most problematic things which we are facing, that we are clueless. That we are clueless what to do. What is the the scenario is we are in a situation where we don't know what to do. So right now what we can do, जो सर ने भी कहा कि सबसे important है कि हम इस लॉकडाउन को किस प्रॉफिटेबल वे, इन अ पॉजिटिव वे, इसको हम लॉकडाउन को पूरा रिसेशन, पूरा इस पैंडेमिक को, इसके बारे में ज्यादा ना बात करके हम सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं. तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन हमारे पास है कि द shifting of this particular education system is and this is basically a shifting period. What is this all about shifting? That means we are going from a traditional teaching to a teaching which is all digital based, or is all about, that means that technology will play a very important role in every aspect of your life. The technology play a very important role. Due to this pandemic, the human interaction, or due to this social distancing, we all are facing the problem that social distancing, due to this social distancing, human इन्वॉल्वमेंट इज मिनिमाइज. जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते थे हमारे लिए, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी था, टूरिज्म था, एंड एरो, जितने भी सारे के सारे यहाँ पे सबसे ज्यादा फुटफॉल होता था, दैट ऑल इंडस्ट्रीज आर गॉन नाउ. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन राइट नाउ? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन ये है कि we have to think, rethink and restructure our technology, restructure our education system. तो एजुकेशन सिस्टम में, अभी मैं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी बात करूंगी सर, इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि दैट आवर ट्रेडिशनल एजुकेशन शिफ्टिंग टू अ ई लर्निंग मोड. अब ई लर्निंग मोड में देयर आर वेरियस रिसोर्सेज व्हिच वी आर फेसिंग, दैट टीचर्स आर नॉट स्किल्ड. Teachers are basically facing lot of problem when they are using gadgets. And of course there is a lot of problem on student side also. They are not able to communicate. There is a problem in the communication also. There is a problem with the network also. There is a problem with how to make them understand. So that is the one problem we are facing. The second problem is the problem of what is this called, that examination system in the middle of something which where we cannot think about it कि हम घर बैठे एग्जाम किस तरीके से देंगे. नाउ द थर्ड पार्ट इज एम्प्लॉयबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज एम्प्लॉयबिलिटी. इस पोस्ट कोविड के बाद हमारी एम्प्लॉयबिलिटी किस तरीके से और किस तरीके से मूव करेगी. तो किस तरीके से हम इस पे बात करेंगे. अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट हर एक फॉर्म के, हर एक टर्म के, हर एक एग्जाम में, हर एक डिपार्टमेंट के, यानी कि देयर आर मैनेजमेंट स्टूडेंट आल्सो, एंड देयर आर आईटी स्टूडेंट आल्सो, एंड देयर आर आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी बच्चे हैं हमारे पास. तो तुम लोगों के पास अभी मैं एक टास्क देती हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच यू हैव टू राइट डाउन, की फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एरिया. अगर मैं आईटी की बात करूँ तो देयर आर बेसिकली आफ्टर पासिंग दैट आईटी sector you will be having two kind of a job, software and hardware. And if I talk about the management, you will be having a 3 or 4 type of a job like HR, marketing and finance. एंड अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो सेम विद दैट, सबके साथ एक ही है. अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम इस जॉब को, इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें. तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ. प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर तुम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो. हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई कांट यू बिकम अ रिसोर्स पर्सन फॉर ऑल दिस. आप अपने टीचर्स के साथ क्यों नहीं उनके साथ एक असिस्ट करके ये बोलें कि हम आईटी प्रोफेशनल हैं एंड वी वांट टू वर्क ऑन योर वेबिनार, हाउ टू असिस्ट यू, हाउ टू मेक एवरीथिंग सिंपल. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. जब मैं भी पढ़ाती हूँ, जैसे आई एम आईटी प्रोफेसर, द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग कि जूम का नहीं समझ आता, किस तरीके से हम रिसोर्सेज शेयर करें, किस तरीके से हम उसके अंदर व्हाइट बोर्ड यूज करें, किस तरीके से प्राइवेट इशू. तो द पर्सन हु इज गोइंग फॉर दैट आईटी, उसको पता होगा कि आईटी के फ्यू ग्लिचेस क्या होता है. आईटी के अंदर प्राइवेसी इशू इज अ वेरी बिग इशू. जो सबसे बड़ा इशू जो आएगा आईटी के अंदर यही आएगा कि हम किस तरीके से इस पूरे के पूरे सिस्टम को सिक्योर करें और इस पूरे सिस्टम को ऐसे सिंक्रोनाइज वे में करें कि इसमें मिनिमम लेवल ऑफ नॉइज हो. नॉइज से दोनों तरह की नॉइज हो सकता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ना हो एंड स्ट्रीमलाइन ऑफ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी. अगर मैं ऑडिबल हूँ तो तुम भी मुझे उतनी ऑडिबल हो जब मैं क्वेश्चन पूछूं. तो ये एक आईटी का जो बच्चा होगा, यूनिक, बिकॉज यू नो ऑल द थिंग्स. आप लोगों को अभी हमसे ज्यादा पता है कि किस तरीके से यू कैन वर्क ऑन दैट. सिमिलरली विद द मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? टू मैनेज एवरीथिंग. तो यू कैन क्रिएट अ इकोसिस्टम और अ
system in your organization where you will play a fundamental role of transition of this particular फेज. दैट मीन्स कि आप तुम्हारा काम क्या होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इंस्टीट्यूट है, इस ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इस 6 मंथ take it as an extension of your time, extension of your internship or anything, and you will say to your teacher or your director कि sir I'm specialized in that particular firm, मुझे IT की ये चीज आती है, I am good in networking. That means you will become a resource person. Whenever you have some problem, whenever you are facing your teacher facing a problem कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं समझ आता वाईफाई में इसका क्या मतलब होता है, नेटवर्क शेयरिंग में क्या होता है, अगर मैं किसी पे VPN पे काम करूंगा तो उसमें क्या होगा, तो भी IT स्टूडेंट बता पाएगा कि नेटवर्किंग में क्या प्रॉब्लम आती है. सिमिलरली a person who is going for a coding, he know all the things when it comes to security. And third one is when is developing में सब पता होगा कि you will find out the stages of software development. That means आप इस पूरे कॉलेज का एक सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश कीजिए जिस सिस्टम में आपको ये समझ आएगा कि हमने इस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया कि one our teachers are benefited by that, our organization is benefited by that, और हमने कुछ कॉलेज को कंट्रीब्यूट किया. एंड मैनेजमेंट का क्या काम होगा, मैनेजमेंट स्टूडेंट जैसे इफ somebody is good in HR, तो he will be doing or he she will be doing something related to the HR. मैनेजमेंट में जो मार्केटिंग है वो इसमें मार्केटिंग का डिजाइन करे, एंड जो रिसोर्स पर्सन है वो सब कुछ फाइंड आउट करे कि व्हाट विल बी द रिसोर्स पर्सन फॉर द नेक्स्ट वेबिनार. तो try to involve yourself with your teachers because the teachers are working very hard for you. उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है जिसके अंदर वो एक नॉलेज बेस ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं जिसके लिए उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर है. बट दिस टेक्नोलॉजी फेस दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो why can't you take a stand and you say that I will do that, I will assist you in that. मैं अपने कॉलेज का रिसोर्स इस तरीके से यूज करवा सकता हूँ IT को इसमें यूज करवा के. तो IT एंड मैनेजमेंट और जो भी आपके यहाँ पे जो भी फील्ड है, थिंक अबाउट इट, एक थिंक टैंक बनाइए और जिसमें ये कहिए कि हम इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे. इससे दो चीजें होंगे, यू विल बी हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन. यू विल प्ले अ वेरी फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रांजिशन. तो जो भी है, जैसे अगर मैं आपको आज ये कहती हूँ कि अगर आपने इस वेबिनार के बाद सेकंड वेबिनार के अंदर अरविंद सर को असिस्ट करना है, असिस्ट इन द सेंस कि किस तरीके से एक टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से आपने रिसोर्सेज को यूज करना है, किस तरीके से आपने इसमें प्राइवेसी देखनी है कि किस टाइम पे कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, चैट सिस्टम कैसे ऑन रहेगा, चैट सिस्टम कैसे ऑफ होगा, अगर सपोज नेटवर्क चला जाता है तो दोबारा से हमें किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन करना है, इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी, किस रेजोल्यूशन पे होगी. तो यू हैव टू थिंक कि इस वेबिनार को नेक्स्ट टाइम से आप कितना इफेक्टिव कर सकते हैं with your teachers, with your organization. तो this is your work right now कि आप आज सोच के बैठिए कि मेरे को अब आज के बाद मैं खाली नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक काम है कि जिसके अंदर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. चाहे आपकी फील्ड नेटवर्किंग हो, चाहे आपकी फील्ड एक सॉफ्टवेयर हो. अगर आप एक IT प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो इसमें डेवलपमेंट का जो काम है, ट्राई टू फाइंड आउट. आपके पास ह्यूज पॉसिबिलिटी है राइट नाउ टू यूटिलाइज दिस लॉकडाउन. In this lockdown, you can utilize lot of things, thinking about कि मुझे इसको contribute करना है. HR के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि that whatever जो भी अभी इंस्टीट्यूट, जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर आपके टीचर्स हैं और बच्चे हैं, try to find out, try to develop a questionnaire. जो भी गूगल फॉर्म पे आप questionnaire डिजाइन कीजिए. And these are the problems we are facing. We need this kind of a education system. जो भी आपके दिमाग में आता है क्वेश्चनाइज बनाइए और उनमें सर्कुलेट कराइए एंड फीडबैक लीजिए. इधर पॉजिटिव फीडबैक विल वर्क, नेगेटिव फीडबैक, दोनों तरह से फीडबैक काम करेगा. मार्केटिंग वाले हाउ टू डिजाइन, जैसे सर ने ये बहुत अच्छा एक वेबिनार के लिए पोस्टर बनाया, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट. आई थिंक जो हमारे स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. तो इसमें चीज में इन्वॉल्व लीजिए अपने टीचर्स के साथ, अपने इंस्टीट्यूट के साथ, और उनको एक ट्राई कीजिए काम करने के लिए, क्योंकि ये एक चीज है जो आगे आपके आगे काम आएगी. आप शिफ्ट करते हैं दूसरी चीज पे, ये तो है कि जो आप कर सकते हैं. सेकंड शिफ्ट कि जो AI बेस्ड चीजें होंगी, बिकॉज नाउ द शिफ्ट इज ऑल अबाउट ह्यूमन माइनस टेक्नोलॉजी. यानी कि ह्यूमन जो भी चीज करते आए हैं उसको माइनस करके हम किस तरीके की चीजों को, यानी कि
किस तरीके की चीजों पे हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि अब मैं बात करूं कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर काम करके किस तरीके से इफेक्टिवली इन अ फ्लेक्सिबल मोड, दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मोड कि मैं यहाँ पे बैठ के तुम लोगों से बात कर रही हूँ और तुम लोग वहां पे अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में सुनो, इससे अच्छा क्या हो सकता था? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट इसको और इफेक्टिव हम किस तरीके से बना सकते हैं? इसको और इफेक्टिवली हम इस तरीके से बना सकते हैं कि जब हम इसको अपने डेली यूजेस में लाना शुरू करें और अपनी जो आसपास की चीजें हैं उनको एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काम करना शुरू करें कि यही है हमारे पास सामने ही है चीजें कि अगर मेरे को अपना कॉलेज का लाइब्रेरी ठीक करनी है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन लाइब्रेरी, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारी लाइब्रेरी ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। व्हाई कांट यू चेंज इनटू अ डिफरेंट मैनर, दैट मींस ई रिसोर्सेज पे आप आइए, आप उसमें कोशिश करिए कि आप उसमें ई रिसोर्सेज की तरह यानी कि इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह शिफ्ट करें। जिनको नहीं समझ आता आप उनको समझाइए। आपके टीचर्स के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है कि दे आर हैविंग प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आईटी से भी नहीं है, तो उनको किस तरीके से आप why can't you assist your teachers and say कि मैं मुझे ये आता है और मैं आपको कराने की आपको असिस्ट कर देता हूँ। एक पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना बहुत कम लोगों को अगर आता है, तो नहीं आता तो उनको सिखाइए। आप किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो क्रिएट अ क्वेश्चन है कि वी आर फेसिंग, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने टीचर्स के साथ बैठ के उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनको बताइए कि मैम वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, और देन साइमल्टेनियसली योर टीचर है कि आई विल असिस्ट यू इन दैट। अब रोल रिवर्स करते हैं, नाउ योर टीचर विल टेल योर प्रॉब्लम एंड यू विल असिस्ट देम, यू विल गिव देम सम सॉल्यूशन। तो ये एक टाइम है जिसको आपको यूटिलाइज करना है। द सेकंड थिंग इज जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि यू हैव टू बी स्किल बेस्ड एंड एआई को हम इंक्लूड करेंगे, एआई को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आईटी के लोग हैं वो समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, यानी कि ह्यूमन, उसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जितना भी मिनिमम हो उतना आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके साथ पर प्रॉब्लम इसके साथ क्या आ रही है, इसमें एक टाइम लगेगा, बहुत टाइम के साथ हम सीखेंगे इन चीजों को कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें काम करना आना चाहिए। एक कॉलेज के अंदर एंटर करते ही हमें पता है कि हमें क्या क्या करना होता था। अब यह है कि ये जो स्मार्टफोन है या तुम्हारा जो लैपटॉप है उसमें एक बहुत ही डोमिनेट पार्ट तुम्हारी लाइफ में या बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्लेस ले लिया है तुम्हारी लाइफ के अंदर। अब इसके साथ तुम्हें जीना है और उसके साथ ही हमें रहना है। कोविड विल नॉट गो फ्रॉम आवर, अगर चला भी जाएगा तो दिस इज द बेस्ट सिस्टम टू डू, क्योंकि वी हैव टू वर्क ऑन अ सिंक्रोनाइजेशन वे इन विच असिंक्रोनस मोड, यानी कि जो ऑलरेडी एक मटेरियल तुम्हारे पास वेबसाइट पे है उसको एक सिंक्रोनाइजेशन वे में, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आपको उसको यूज करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करे। तो आप इस पे क्यों नहीं काम कर सकते? हमारे पास यंग ब्लड है, यंग माइंड है, अपना थिंक टैंक उठाइए और सोचिए कि किस तरीके से हम मैं इसमें एंगेज कर सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि जॉब तो अभी बहुत मुश्किल है। जॉब अगर जॉब आएंगी भी तो उस तरीके की जॉब आएगी यू विल नॉट फील हैप्पी, बिकॉज अगर घर में भी बैठ के तुम्हें काम करना है तो इससे बेटर काम क्या होगा जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी एलुमनी बन के यहाँ से जाएंगे। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ट्राई टू थिंक इन अ ब्रांचिंग वे। अब ब्रांचिंग वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है? ब्रांचिंग वे ऑफ थिंकिंग होता है इट वर्क्स ऑन अ 3 C's। चैलेंज योरसेल्फ दैट यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर थिंग, देन आफ्टर दैट चॉइस, मेक अ चॉइस, एंड उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस। इसको इस तरीके से लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि व्हाई कांट यू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर टीचर्स, कि आप अपने टीचर्स के लिए काम करिए। तो आपको अपने आप को चैलेंज करना है दैट वी हैव टू वर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, चॉइस फाइंड आउट करो, आपको आईटी की फॉर्म में काम करना है या आईटी की स्ट्रीम में यानी डिपार्टमेंट में काम करना है या मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट में काम करना है, लाइब्रेरी में काम करना है या डीबीएमएस सिस्टम बनाना है, एमआईएस के ऊपर काम करना है, जो भी, बिकॉज आई एम आईटी पर्सन आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आईटी या मैनेजमेंट वाले उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू फाइंड आउट द चॉइस एंड देन फाइंड आउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि ये काम करा और ये काम नहीं करा। दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ ब्रांच कि मैंने ये काम किया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है, मैंने ये काम किया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है। अगेन अगर वो नहीं काम किया तो दोबारा चाहिए। तो ब्रांचिंग मेथड हमें अपनी लाइफ में ऐड करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू ऐड दिस ब्रांचिंग मेथड इन आवर लाइफ। अब उसके बाद सेकंड मेथड, और अगर मैं बात करूं वो टीचिंग के अंदर है कि यू हैव टू वर्क फॉर द सिमुलेशन मेथड।
Simulation method in which you will play a active role in your life, active role in any case study. तो इस केस स्टडी का आप एक्टिव रोल क्यों नहीं प्ले करते? आप बनाइए एक केस स्टडी की जिसमें मैंने अपने कॉलेज के अंदर इस कोरोना के टाइम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर मैंने एक रिसोर्स पर्सन की तरह इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस टीचर के साथ रह के इस सब्जेक्ट का ई लर्निंग मोड इतना अच्छा बनाया कि उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप एप्स क्यों नहीं यूज करते? डिफरेंट डिफरेंट ऐप यूज करिए, या डिफरेंट ऐप जो भी आईटी के बच्चे हैं उनको कहिए छोटी छोटी ऐप बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ब्लॉगिंग से छोड़ के ब्लॉगिंग वाला एक कंटेंट बनाएगा, एक कंसेप्ट डिजाइन करेगा, और उसके साथ एक जो कोडिंग का जो बच्चा है वो एक ऐसा ऐप बनाने की कोशिश करे जो छोटे बेसिस पे हो, ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना, बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे काम करे। और जो मार्केटिंग का बच्चा है वो उसकी मार्केटिंग पे काम करेगा, जो मैनेजमेंट का बच्चा मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट में ही विल हैंडल ऑल द रिसोर्सेज, एचआर का पर्सन, एंड देन आफ्टर दैट जो फाइनेंस के ऊपर देखेगा। तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरीके से इसको फेस कर रहा हूँ, क्योंकि यही आप इस टाइम पे दे सकते हो। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इनोवेशन टेक्निक किसको कहा जाता है? इनोवेशन टेक्निक किसको कहा जाता है? जब मुझे पता है कि मेरे पास मैं इस तरीके से इसको और अच्छा कर सकता हूँ। इनोवेशन, यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू आर गिविंग योर ऑर्गेनाइजेशन समथिंग विच जिसने आज तक नहीं सोचा होगा कि किस तरीके से हम इसको काम करेंगे और किस तरीके से हम इसको आगे यूज लेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट सेमेस्टर कितना अच्छा होगा कि XYZ स्टूडेंट ने एक ऐसा ऐप यूज करा, एक ऐसा ऐप बनाया जिसने ये चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करी। सिमिलरली छोटी छोटी एप्स जो भी हो सकता है, जो भी आप सामने देख रहे हो, अपना लाइब्रेरी सिस्टम हो सकता है, आपका स्टूडेंट का हो सकता है, आपका फीडबैक हो सकता है, बहुत सारी चीजें जिसको आप यूज करके बना सकते हैं। तो यू हैव टू थिंक, जितने भी स्टूडेंट है, आज आपका प्रोसेस ये होगा कि आफ्टर दिस सेशन यू विल सिट एंड थिंक अबाउट इट कि मुझे इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है। आई हैव टू इनहेंस माय स्किलिंग इन अ वे दैट आई विल कंट्रीब्यूट टू माय ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं उसको कंटेंट के लिए यूज करूंगा। अगर मेरे को बोलना अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से एक वॉइस मैसेज अपने टीचर्स के साथ यूज करना शुरू करूंगा जिसमें उनके लिए इजी हो। आफ्टर दैट यू विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वेबिनार कि मैंने जो पढ़ा दिया उस वेबिनार का क्या मतलब था। तो इस तरीके से आप अपनी वॉइस नोट पे उसको वेबिनार को पूरा का पूरा पढ़ने के समझने के बाद, जो भी तुम्हारी वेबिनार्स होती हैं उसके बाद समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, क्योंकि इजी करना ही टेक्नोलॉजी का मेन फंडामेंटल चीजें होती है कि फंडामेंटल यही है कि हाउ टू मेक थिंग्स इजी। हम टेक्नोलॉजी को भी अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो इस तरीके से अगर मैंने ये वेबिनार, इस वेबिनार को एज अ केस स्टडी लो कि एक मैम थी जिन्होंने हमें पढ़ाया और उन्होंने हमें बताया कि हम इस तरीके से अपनी स्किलिंग को एनहांस कर सकते हैं। इस वेबिनार के अंदर हमें ये प्रॉब्लम आई कि किस तरीके से बीच में कोई भी वॉइस आ सकती है, तो मैं इस तरीके से प्राइवेसी के अंदर आगे से ना आए, मैं इसका ध्यान रखूं। एक रिसोर्स पर्सन उसके लिए हो जो सारी की सारी चीजों पे मैनेज करे, एक हो जो सारे के सारी चीजों पे दिखे कि ये टीचर था, इस टीचर में ये वाला क्वेश्चन पूछा, या ये स्टूडेंट था इसने ये क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर इस तरीके से दिया गया। तो इस वेबिनार जितनी भी आपकी सीरीज होती है आप इनको केस स्टडीज की तरह यूज करें। यूज योर वॉइस, यूज योर टैलेंट, चाहे आपका कोई भी टैलेंट हो उसको आप टैलेंट को यूज करिए इस लॉकडाउन के अंदर और इस जो भी आपके 6 मंथ जा रहे हैं, क्योंकि इसी 6 मंथ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हम सबके लिए है कि ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने काफी कुछ हद तक इस लॉकडाउन में सीखा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम बेसिक्स पे आ गए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, बेसिक। पढ़ना इम्पोर्टेंट है तो हम इसको देख के भी तो पढ़ सकते हैं ना, हम कुछ और तरीके से भी तो रह सकते हैं। तो फंडामेंटल नीड्स के ऊपर ही आए हैं हम इस लॉकडाउन के अंदर। तो आज अपने टीचर्स के साथ बैठिए और उनके साथ बात करिए कि मैम आई एम एक्सपर्ट इन दैट, आई कैन कंट्रीब्यूट लाइक दैट। फर्स्ट। सेकंड, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको ई लर्निंग में या ई मोड में यानी कि डिजिटाइज करने की कोशिश करिए। उनके कोशिश करिए कि किस तरीके से स्ट्रीमलाइन हो सके कम्युनिकेशन। अगर पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल किस तरीके से जाएंगी, अगर मुझे उनके अंदर कुछ यूज करके उनके अंदर मॉडिफाई करना है तो चेंजिंग किस तरीके से होगी। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से होते हैं, क्योंकि उनको जो पढ़ाना था वो ऑलरेडी, जो जिस तरीके का टीचर बनना था ऑलरेडी वो ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। बट दिस पैंडेमिक इज सो अनसर्टन कि हमको किसी को भी टाइम नहीं मिला है ये सोचने का कि हम किस तरीके से आगे करेंगे। तो व्हाई कांट यू टेक अ स्टैंड एंड से कि मैम आई विल डू दैट फॉर यू।
हम इस चीज को और इजी करेंगे, मैनेजमेंट के साथ बैठ के हम इस चीज को और मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर फाइनेंसिस प्रॉब्लम है तो हम फाइनेंसिस में इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें फाइनेंसिस, क्योंकि तुम्हें आगे एक डिफरेंट सिनेरियो में जाके काम करना है, तो तुम इस सिनेरियो में क्यों नहीं काम कर सकते? तुम बोल सकते हो कि वी कैन वर्क ऑन दैट। स्किलिंग इसी को कहा जाता है, इनोवेशन इसी को कहा जाता है, और एमएसएमई इसी का ही है। मीडियम जो स्केल की जो भी ट्रेनिंग होती है वो ये सिखाती है कि आप छोटे सी चीज से बड़ा किस तरीके से कर सकते हैं। और आपके पास तो ऑलरेडी इतनी सारे रिसोर्सेज है, एक फ्री स्ट्रक्चर है जिसको आपको रीडिजाइन करना है। क्योंकि अगर इसकी बात करी जाएगी, अगर तुम्हारे पास, जैसे मैं एआई की बात कर रही थी, कि एआई के हिसाब से हमें पढ़ाना भी तो पड़ेगा ना टीच बच्चों को। हमारे पास एक एआई एक सब्जेक्ट है, हमने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो भी करी नहीं, तो हमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर करिकुलम भी इम्पोर्टेंट है, उसमें लगेगा टाइम। उस पर इस टाइम को हम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। इस टाइम को हमें वेस्ट ना करके हम एक अच्छे रिसोर्स पर्सन के लिए, अपने टीचर्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करके एक रिसोर्स की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं अपना नाम स्थापित कर सकते। तो मेरा आप लोगों से यही है कि इस टाइम को एक यूटिलाइज करिए, एनहांस योर स्किल। अगर इंग्लिश है एनहांस, तो इंग्लिश पे काम करिए। हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिंदी का ना तो हमारे पास कोई ऐप है, हिंदी राइटिंग बड़ी प्रॉब्लम है, टाइपिंग से हिंदी लिखना बड़ा प्रॉब्लम है। हिंदी के टीचर्स के लिए कितना प्रॉब्लम है इस ई लर्निंग के मोड से पढ़ाना। मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए कितना प्रॉब्लम है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राई टू डेवलप सिंप्लीफाई एप्स जो इस तरीके के क्रिटिकल थिंकिंग के साथ काम करे। क्योंकि ब्रांचिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रांचिंग इज द एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जब आउट ऑफ बॉक्स से आप काम करते हैं, या आउट ऑफ बॉक्स जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, जो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर चीज पे बोले कि मुझे ये करना है, मेरी चॉइस ये है और ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो आप उसी तरीके से इस चीज को कोशिश करिए अपने डेली लाइफ में लाने के लिए, जिसके साथ आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें इस पैंडेमिक के अंदर, और पॉजिटिव रहिए। आई थिंक मैंने काफी कुछ कह दिया। हेलो सर, I am ready for the question answers thing. If anybody is there for a questions, I want to interact with the student कि क्या समझे वो इस चीज से। Yes, ma'am. हाँ, I कुछ सुना भी है इन्होंने, तो I want to interact with student कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी चीज मैंने अभी बोली है वो किस तरीके से ये लोग इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने वाले हैं। Right. I'll request to each and every student, whatever queries they have, they can ask to ma'am regarding the employability, what the things are happening in the future, how they have to solve the issues which is coming on the way regarding employability in front of them. So I think it will be nice, and then ma'am is there to give you the answer about all the queries whatever you have. So if anybody is having any kind of questions, they can ask. Ma'am, we have got one question from one of our student. Yes. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible, sir. बताइए. Ma'am, how can HR person like HR in management studies to change in e-technologies? Right now. The question of whom is how the HR person can utilize these kind of e-technologies, or how the HR management student can use these kind of digitalized sir, I'm coming for the question. Like, answer इसका यही है, student जो भी आपका, कि बेटा whatever you want to do, like you are a HR person, you have to find out कि आप in your department how many teachers are there who are facing a problem in technology, who are facing a problem in that streamline of this technology या infrastructure related issues किस teachers को आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना एक क्वेश्चनर डिजाइन करिए और उसमें फाइंड आउट करिए कि किस टीचर को क्या प्रॉब्लम या किस स्टूडेंट को किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज को इस तरीके से यूज करिए कि आप इसमें एक क्वेश्चनर डिजाइन कीजिए,
एक पर्टिकुलर वेबिनार को ध्यान में रखिए कि हमने एक पर्टिकुलर वेबिनार की, उसमें हमें ये इश्यूज आए, हमारे टीचर्स को ये प्रॉब्लम थी, हमारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी, दे आर नॉट ऑडिबल, दे आर ऑडिबल। क्वेश्चन जब पूछना था तो क्वेश्चन में काफी टाइम लगा, क्वेश्चन का जब आंसर दिया तो आंसर में टाइम लगा। इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, व्हाई कांट यू मेक अ सिस्टम इफेक्टिव। तो यही एक वेबिनार के अंदर ये चीजें होती है कि जब आप इजीली एक्सेसिबल चीजें हैं, पर साथ में टेक्नोलॉजी ग्लिचेस भी तो हैं इसके साथ, तो टेक्नोलॉजी ग्लिचेस को कितना मिनिमाइज करा जाए, वो एक एचआर का पर्सन ये डिजाइन करेगा कि कौन रिसोर्सेज थे, किस तरह की प्रॉब्लम उनको आई, स्टूडेंट्स को आई, एंड फाइंड आउट। जितने भी लोग हैं इसके अंदर, आज उनके नाम लिखिए और उनसे इस चीज का फीडबैक लीजिए। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अ वेबिनार, कि हमने कुछ नया सीखा। अगर नया नहीं सीखा तो उस वेबिनार का कोई मतलब नहीं होता। तो आज नया क्या सीखा और किस तरीके से हम इसको पर्टिकुलर अपनी लाइफ के अंदर यूज करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एचआर पर्सन आज अपना एक क्वेश्चनर बनाए और इस तरीके के सर्कुलेट कीजिए कि हमने इस वेबिनार में ये सीखा और इस तरीके की प्रॉब्लम हमने फेस करी और इस तरीके की चीजें। देन आफ्टर दैट यू विल वर्क ऑन अ पॉजिटिव फीडबैक और अ नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक किस तरीके से काम करेगा, नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से काम करेगा। ओके, होप आई गिवन दिस आंसर। Yeah, hello. Ma'am, I think Manish has got the answer. He has said, okay, ma'am, thank you so much for more learning. One more question we have got from one of our team members for institute. How can student arrange funding for app development and promoting our innovative ideas? देखो बेटा, जब यू आर डेवलपिंग अ ऐप ना, देयर इज अ मिनिस्ट्री एमएसएमई जिसके अंदर मैं काम करती थी। उसमें क्या होता था, देयर आर वेरियस लोन्स जो नहीं पता होते, बिकॉज देयर इज अ बहुत कम नॉलेज है जिसके बारे में। यू गो टू दैट वेबसाइट msme.org करके वेबसाइट का नाम है, उसमें एमएसएमई लिखिए तभी आपका लिंक आ जाएगा। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैंक, सिडबी है एक, सिडबी जिसे कहा जाता है, वो आपको लोन देती है। आपको बहुत छोटे से एक आइडिया के साथ एक आईडी नंबर बना के दे दिया जाता है, एंड दे विल गाइड यू। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू पुट योर बेसिक आइडिया कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, और ये मेरा एक एक्सपर्टाइज है, आई वांट टू डेवलप दिस थिंग फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन इन विच माय एक्सपर्टाइज इज दैट, माय फंक्शनल एरिया इज दिस, और इसमें सब चीजें आपके पास आ जाएगी। दैट finance is not a problem if your idea is good. Finance कभी problem नहीं होगी, you just have to give a unique idea. Hello. Yes. Yeah, I think she has got the answer. We are waiting for some more questions. If any students are having any questions regarding their employability issues. So the main problem which we face in this kind of a webinar, I want to tell you a few things. In this webinar, the problem we're facing as a teacher also, as a student also, there is a lot of communication gap. So we have to develop a system in which the communication gap must not be there. Students के साथ interaction करना बहुत important है, उनको find out कराना कि this webinar is only for you. We are wasting your time, we are wasting your resources. This is something for you. You have to cooperate with us and you have to be actively participate in all that. तो ये जो चीज है ना सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कभी वेबिनार, कभी हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे तो हमें फेस नहीं होती थी, बट दिस टाइम द प्रॉब्लम विच विल बी फेस इज बेसिकली द कंसंट्रेशन प्रॉब्लम एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये अभी आने वाली है हम लोगों के साथ। तो हर एक वेबिनार के बाद एज अ स्टूडेंट आप रिसोर्स पर्सन रखिए और उनको काम पे लगाइए। ये जो स्टूडेंट्स है जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी जॉब नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, दिस इज योर ट्रेनिंग पीरियड, व्हाई कांट यू यूज दिस पीरियड एज अ ट्रेनिंग। आप इस लॉकडाउन के अंदर यूज करिए कि किस तरीके से हमने एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया और उसमें हमें ये प्रॉब्लम आई, हम इस तरीके से इस पर्टिकुलर वेबिनार के अंदर इस तरीके से रिसोर्सफुल काम कर सकते हैं, किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होगा, किस तरीके से हम वेबसाइट पर डालेंगे, किस तरीके से पोस्टर बनेगा और किस तरीके से हम आगे काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम इनके साथ करिए और उनके साथ इनका ट्रेनिंग पीरियड लिए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बैठ के इनको एक सर्टिफिकेट दे दीजिए उसके बाद कि दे वर्क एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर ऑर्गेनाइजेशन और वेबिनार। क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में भी तो यही होता था, जब हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे कॉलेज के, हम सब यही तो करते थे, पर इनके लिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग कह के चले जाएंगे बट इनकी इन्वॉल्वमेंट का क्या, इनके लिए तो है, इनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी है, क्योंकि हम तो right. Yes, ma'am. I think
सबसे बड़ी चीज ये है कि सभी विद्यार्थियों को ये समझना पड़ेगा कि भैया इस दौरान ये इस पैंडेमिक में उन्होंने अपने आप में क्या डेवलपमेंट किया, रियल में उन्होंने कहाँ पे जाके अपनी स्किल्स को डेवलप किया। ये समय है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाने का। यही समय है। आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं? आपके पास तो कितना काम है। अपने कॉलेज में देखिए आपने क्या किया है अभी तक कॉलेज के अंदर। आप ये देखिए कि हमने कॉलेज में किस तरीके से हमने इस कॉलेज के रिसोर्सेज को और यूटिलाइज करा थे। हम यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं? हम अपनी लाइब्रेरी के अंदर कितने क्रॉस कल्चरल लाइब्रेरी या क्रॉस उसमें आपने कहा एक जैसे आपका कोई भी इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के साथ आप दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं? स्टूडेंट इंटरेक्शन किस तरीके से होता है? आपने कोई क्वेश्चन आंसर बनाए, क्वेश्चन आंसर के ऊपर क्या फीडबैक है? तो घर बैठे हो सकती है ना चीजें। व्हाई यू वांट टू गो फॉर एन इंडस्ट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट? ये तो आपके सामने इजीली अवेलेबल है, तो करिए इस तरीके से काम। Hello, ma'am. One more question we have got from the student. With so much of automation and digitalization, most of the HR work will be done by computer. How can a student of HR develop their ability to stay relevant and useful for the organization? You have to work as a think tank. आप उसके अंदर जो क्वेश्चन है ना उन पे काम कीजिए। जैसे मैंने अभी बोला कि किस तरीके से आपने इससे पहले सोचा था कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। टेल मी ऑनेस्टली, जो भी स्टूडेंट पूछ रहा है उससे पूछिए कि आपने कभी सोचा था कि हम इस तरीके से अपनी वेबिनार के अंदर भी एक रिसोर्स पर्सन की तरह काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट टू दिस वेबिनार। योर टीचर्स आर डूइंग एवरीथिंग, यू आर डूइंग नथिंग। द थिंग इज दैट आप लोग तो कंसंट्रेशन भी नहीं यूज करते हैं, जो आपका एक फंडामेंटल चीज है जो आपको करनी चाहिए, वो भी नहीं यूज करते। तो इसीलिए एक वेबिनार से पहले एक क्वेश्चन तैयार करिए, टॉक टू योर स्टूडेंट्स कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों नहीं था वो क्वेश्चन? क्योंकि नहीं सोचा। आउट ऑफ बॉक्स हम कभी नहीं सोचते, हम नहीं सोच सकते। इससे पहले बहुत इजीली अवेलेबल होने वाली चाहिए थी कि ये चीजें थी और इस तरीके की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स और ना थिंक टैक। आईटी जो भी एचआर के लोग हैं, दे हैव टू थिंक अबाउट ये हमारे पास चीजें हैं, ये हमारे पास टीचर्स हैं और ये हमें प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनाइज डिजाइन करें और उस क्वेश्चनाइज पे ध्यान रखें कि इसका सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चनायर हो, प्रॉब्लमेटिक बेस्ड चीजें नहीं करिए। क्योंकि कोरोना तो है ही प्रॉब्लम हमारे लिए ऑलरेडी, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग कि ये चीजें हम इस तरीके से आगे यूज करने वाले हैं। तो एचआर का बंदा एचआर का जो भी है बच्चा, उसको कहिए कि इस तरीके से हम एक थिंक टैंक की तरह यूज होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। Yes, it's a really a relevant question as well as the answer given by ma'am, because I also think that because of this pandemic, most of the employees are working from home, right? And the HR people role has improved. It has emerged as one of the important role in the organization, because you have to check it out whether the employee working from home is working efficiently or not, whether they are satisfied or not. So the resources satisfaction, their progress, potential capabilities, these all things can be measured by the HR people. So I think in this digitalized world, definitely the HR role will be improved and they'll get a maximum responsibilities in the organizations. After every webinar, talk to your HR student, make them understand that this webinar is like that. We have find out this kind of a solution in this type of problem and try to find out the feedback of every student कि ये feedback था, clarity नहीं थी, sound problem थी, network जा रहा था, या टीचर इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाया। इस तरीके की सारी चीजें चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट विल ऐड टू योर रिसोर्सेज। ये ऐड ही करेगा आगे वेबिनार में। शायद अगर 10% चीजें खत्म नहीं हुई तो 1% तो होंगी, बट व्हाई स्टूडेंट्स आर सिटिंग आइडल, ये मुझे समझ नहीं आता। ये तुम्हारी जगह है, तुम्हारा कॉलेज है, तुम इस पे काम करिए, तुम एलुमनाई बनोगे। तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हारे लिए काफी कंट्रीब्यूट करा है, वो तुम्हारे लिए 3 या 4 साल पूरा कंट्रीब्यूट करते आए हैं। व्हाई कांट यू कंट्रीब्यूट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड योर टीचर्स कि नाउ वी विल गिव यू अ हेल्पिंग हैंड एंड वी विल वर्क ऑन लाइक दैट, वी विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि हम इस सब्जेक्ट को और इफेक्टिवली ई लर्निंग मोड में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वर्क एज एन अ टीम, वर्क एज एन रिसोर्स पर्सन एंड उस कंटेंट को इतना क्रिएटिव और इतना इजी बनाइए कि बहुत इस मोड में भी वो इजी लगे।
क्योंकि इस मोड में पढ़ाना काफी मुश्किल है, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी पीपल, एक स्क्रीन को देख के तुम किस तरीके पढ़ा सकते हो क्यों, और इसकी फंडामेंटल ट्रेनिंग किसी टीचर के पास नहीं है. they are working day and night for you to understand few things, और तुम्हारे लिए ही सब कुछ हो रहा है कि तुम लोगों को लेफ्ट आउट ना लगे, और तुम लोगों को ही हमारे साथ बैठ के वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो करिए इस तरीके से काम. Definitely. I think students have got the answer what they want to get. And I think the last question, one more question we have got from the student. I don't know about app development, but I have various ideas about that which can help us. What should I Yes. do? Any platform? आप किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट डाउन योर थिंकिंग, मैंने ये सोचा. कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपने ये सोचा. एंड टॉक टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हु इज गुड इन कोडिंग. ये आपको कॉलेज के आपके रिसोर्स, वही ना, दैट यू हैव टू डेवलप एन इकोसिस्टम जिसमें आईटी के लोग इस तरीके से, आपको पता हो कि आईटी, अगर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है मेरी नेटवर्किंग पे, तो ये मुझे यूज करने, इससे मैं बात करूंगा तो ये यूज हो जाएगा. अगर मुझे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोडिंग के पास जाऊंगा. अगर मुझे किसी भी चीज में, नेटवर्किंग में, ये कोडिंग में, डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर में, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास ये लोग हैं. तो यू हैव टू डेवलप अ काइंड ऑफ अ थिंक टैंक और काइंड ऑफ अ नॉलेज बेस जिसके अंदर ये लोग इस तरीके से काम करें. तो यू फाइंड आउट कि आपका ये प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप इस स्टूडेंट के पास जाएंगे. अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो फाइंड आउट अ कंप्यूटर डिपार्टमेंट टीचर्स और योर दैट, उनके जो भी सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो उसके स्टूडेंट है जो उस पे काम कर रहे हैं कोडिंग पे. अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो कोडिंग में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Hello. Yeah. I think Amit has also received the answer what he has asked. We are also getting feedback perfectly explained by Professor Tawar ma'am. Thanks, ma'am. Excellent. Everything is explained. So we are also getting feedback. That is good about, Thank you. that is good about these kind of online platform. So we can get everything on a click. तो बेटा you have to work actively in that. आप उठिए, नींद से जागिए. तुम्हारी प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है, मेरे से सर ने बात करी तुम्हारे प्लेसमेंट की, तो तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं. हम तो प्लेस हो गए, तो तुम्हें देखना कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अच्छी तरीके से इस लॉकडाउन को यूटिलाइज करो और अपनी स्किल को एनहांस करो. तुम्हारे लिए स्किल में बहुत कुछ है. अपना लाइब्रेरी सिस्टम देखो किस तरीके से आप उसको, किस तरीके से आपको डिजिटल कर सकते हैं, किस तरीके से इसके अंदर नेटवर्किंग का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको इजीली एक्सेसिबल बना सकते हैं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए. टीचर्स के साथ यू हैव टू कम्युनिकेट टीचर्स के साथ कि ये आई वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. मेरे लिए अगर डीबीएमएस सब्जेक्ट है, सपोज मैंने अगर एमआईएस पढ़ाया, तो एमआईएस के लिए मेरे पास अगर कुछ भी केस स्टडीज है, दीज आर द न्यू केस स्टडीज, इसको मैं ई लर्निंग मोड में इस तरीके से आपको क्रिएटिव बना के देता हूँ. सो दैट जो वॉइसिंग के अंदर लोग हैं, जो इनकी वॉइस अच्छी, इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, इधर हिंदी और इंग्लिश, दे विल मेक इट ऑन अ इजी वे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. और ये टाइम तो ऐसे भी जाने वाला है जिसमें अगर आपको लगेगा कि हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं, आपको ट्रेनिंग के लिए आपके पास बहुत कुछ है. राइट नाउ यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू राइट नाउ. Thank you. Thanks a lot, ma'am. थैंक यू सर. मैं वेट, I would. Yes, ma'am. मैं इसका फीडबैक का वेट करूंगी, और इन सबको आप काम पे लगाइए सर. जितने भी बच्चे थे आपके पास, हाँ, उनको हाँ. काम पे लगाइए, उनको बोलिए आज से लग गए हैं काम पे, मुझे लग रहा है. ये फीडबैक कराइए इनसे. ये हमारे लिए नहीं हो रही है वेबिनार. ये इसा अगर ये प्लेसमेंट के लिए कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं प्लेसमेंट, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई, तुम्हारी ट्रेनिंग अब से स्टार्ट होती है. आज के बाद तुमने पेन और पेपर में जो लिखा था लिखिए कि मेरी ट्रेनिंग प्लेसमेंट अब स्टार्ट हो गया. ये इस तरीके से मैं अपना ये पूरा लॉकडाउन निकालूंगा. इनको सर जितने भी लोग हैं, चाहे 10 हैं चाहे 100 हैं, जो भी बच्चे हैं आपके पास, इनको आज के बाद अपना इनको काम दीजिए. अगर आपके पास इस वेबिनार का यू फाइंड आउट करके, इस वेबिनार को केस स्टडी बना के आगे यूज करवाइए कि हमको इसमें ये प्रॉब्लम आई, हमने को इसमें ये चीज हमने फेस करी. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेबिनार, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फाइंडिंग अ रिसोर्स पर्सन, टू टॉपिक, टू डिजाइनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट, टू calling and having that scenario कि हमने रिकॉर्ड का बटन कब दबाना है,
हमने रिसोर्सेज का कब दबाना है, हमने चैट कब यूज करनी है, हमने कब किसको साइलेंट करना है, बिकॉज फिशिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू आने वाला है अभी इस तरीके की वेबनार में कि कौन तुम्हारा रिसोर्स यूज कर लेगा कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आईटी के स्टूडेंट्स काम आएंगे, किस तरीके से आप पूरा का पूरा मैनेज करने वाले, वहाँ पे मैनेजमेंट यूज करेगा, किस तरीके से आईटी और किस तरीके से कोलैबोरेशन होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फील्ड यूज करने वाले हैं। तो फाइंड आउट करिए कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके अंदर सब में स्किल है, बट जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर कि मैं इस तरीके से कंट्रीब्यूट करूंगा। और वही एक एजुकेशन सिखाती है हमें। एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि हम एक एजुकेशन की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दे के बाहर जाके नौकरी करेंगे जिसमें वी विल बिकम सक्सेसफुल और वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका अभी यही फेस चल रहा है। यू हैव टू कम टू द बेसिक फंडामेंटल थिंग, क्या फंडामेंटल चीजें हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें मार्क्स लेके हम पास हो रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करेंगे। अगर मैं डीबीएमएस पढ़ा रही हूँ तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि मुझे मैनेजमेंट करना आना चाहिए, मुझे मैनेज करना आना चाहिए डेटा, या कोई भी डेटा साइंस कोई भी पढ़ रहा है, या एचआर कोई भी पढ़ रहा है, या एडवर्टाइजमेंट। तो इस वेबिनार को एज अ केस स्टडी लेके आप काम पे लग जाइए आज से। Hope the session is over because I'm not getting any question right now. Arvind sir, Yes, I sir. will. Right, right. I think we are now at the last phase of this webinar session, and And I want to communicate to your director sir also कि सर आज से इनको काम पे लगाइए। अगर कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है तो उनके पास बहुत काम है अभी। आज से बिल्कुल मैम। आज से लगा देंगे। आज से इनको काम पे लगाइए। जी, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। हमारी अगर समर ट्रेनिंग हुई तो तुम्हारी समर ट्रेनिंग कब से Yes, स्टार्ट yes, होगी तुम्हें पता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस वेबिनार इज नॉट लाइक somebody is coming here and giving you a talk, तुम्हें कोई भी ज्ञान की बातें देके जाएगा। नो, दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई टीचर हो। फाइंडिंग अ रिसोर्स पर्सन इज नॉट अ इजी थिंग, और उसके लिए टाइम निकाल के आना तुम्हें बताना इजी नहीं है। तो आप अपना एक फीडबैक सिस्टम बनाइए और जिसमें आप काम करें कि ये चीज है, इस तरीके से काम होगी, एंड वी विल प्ले एक्टिव रोल इन दिस नेक्स्ट वेबिनार से। यू विल राइट अ लेटर सर, मुझे बोलोगे कि हमारे बच्चे कुछ तो काम कर रहे हैं। यू विल नॉट डू नाउ, आफ्टर दैट यू विल नॉट डू कि हमारा काम इतना आके हमने नहीं समझा दिया। नहीं, बिल्कुल, absolutely agree, ma'am. Yeah. No, ma'am, it was a really a interactive and a very nice session for all the students, and Thanks a lot. the insight which was given by you, it was completely a practical insights which normally a teacher face or any employer. अगर अकाउंट्स का एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपका एक अकाउंट्स का टीचर है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट है ई लर्निंग मोड में पढ़ाना। आप उसको इजी क्यों नहीं कर रहे कि जो स्टूडेंट है, जो हमारा आज का स्टूडेंट है, वो हमसे कहीं ज्यादा टेक से भी है, उसको हमारे से सबसे ज्यादा पता है। उसको ये भी पता है कि इस चीज को किस तरीके से प्रॉब्लम कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं। तो इनको इनके काम पे लगाए, इनका जो माइंड है ना नेगेटिव ना जाके इनको पॉजिटिव लगाए कि नो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज समथिंग योर टाइम, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमने अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, 3 साल से हम बहुत कुछ करते आ रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। बिकॉज एज अ टीचर हमारी होते हैं हमेशा कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। तो तुम इसके साथ कुछ अच्छा ना करके हमारे साथ हेल्पिंग हैंड बनो हमारा, क्योंकि यही तुम्हारा ट्रेनिंग और यही एक एजुकेशन सिस्टम बनाता है। यू हैव टू बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को कहा जाता है। तो यही है, इनको सिखाइए, इनको बताइए कि ये तुम्हारे लिए हो रहा है भाई। हम तो पढ़ लिया और हम कर भी लिए, हम पहुंच गए जहाँ पहुंचना था हमें। डेफिनेटली। हमें तो जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गए। तुम्हारे और ये सब ज्ञान की बातें सभी विद्यार्थियों के लिए ही है। सर, जब मैं अपने कॉलेज का एफआर इसी के लिए हम सब, मैं अपने कॉलेज का प्लेसमेंट देती थी तो मेरा काम यही होता था पहली मीटिंग में कि आई विल नॉट गिव यू एनी गन, और मैं तुम्हें प्लेटर पे कुछ नहीं देने वाली। दिस इज योर, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तुम लोगों को काम करना है, मैं काम नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगी कि दिस इज राइट एंड रॉन्ग, और तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंड रॉन्ग फाइंड आउट करना। हम तो तुम्हें सिर्फ ये बता सकते हैं राइट और रॉन्ग, ये है, डायरेक्शन दे सकते हैं। तो डायरेक्शन हमने आज तुम्हें दे दी है। आज के बाद तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में काफी काम करने वाले हो। आई होप सर कि कुछ काम करें इसके बाद। नहीं, श्योर आपकी गाइडेंस वैल्यूबल रहेगी, और मुझे लगता है कि काफी विद्यार्थियों को सच्चाई का भी एहसास हुआ है इससे, और इट विल रियली अ लर्निंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड यू हैव took some time from your busy schedule, that is also good of yours, so
We are thanking you for the same. Honored. And at the end, I'll request Director Sir again to give away the final vote of thanks for the learning which was given by you. Sir, over to you. Thank you, Arvind. Thank you. First of all, very heartily thanks to Professor Divya ma'am for her very inspiring, motivating speech to address to all students. And I see basically whatever ma'am has said in terms of 3C, challenges, choice, consequences, yeah, being proactive, homework karna. So this as an academic colleague or being into same academic fraternity, इसको मैं उस तरीके से देख रहा हूँ that there is a very strong ड्रीम और पैशन इन मैम की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है वो प्रोएक्टिव बने और वो दे शुड बिकम कॉम्पिटेंट इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द लाइफ ऑफ देयर प्रोफेशनल करियर रादर ऑफ खाली एक स्पून फीडिंग की जो आदत है मैम आई फुल्ली एग्री विद मैम जो थॉट प्रोसेस मैम ने दिया कि एट द टाइम मोस्टली स्टूडेंट थिंक्स कि ये सब चीजें करके हमको प्लेट पे मिल जाएगी वी शुड नाउ not wait कि साहब हमको प्लेटे पे मिलेगा that effort has to be there that homework has to be there and then joining hand with the team वो एक बहुत important message मैम ने सारे students को सभी को दिया and I am sure कि after this very motivating and inspiring and hammering message and address from ma'am the students will be certainly taking those thoughts back in their mind which will convert them to do the proactive action. Thanks a lot, ma'am. Your address was very inspiring and it was touching the real fact कि जो ground पे जो position है, जो ground की जो actual position है, जहाँ पे कि वो areas जहाँ पे कि student को काम करना है, वो बहुत important है. Until और जैसा कि CDC का role है, as a student कई बार बच्चा wait करता है कि साहब सब कुछ हमको करके मिल जाए. But gone are the days और किसी भी अच्छे सेटअप में every placement activity, every CDC activity, every expert activities are being coordinated by a student. और वो एक जो grooming होती है, concept of brick by brick, inch by inch building that setup is very important. Thank you very much, ma'am, for sparing your time, for guiding all of us. It was a great learning session. We all are highly thankful to you. That you, in spite of working day, we are aware that at senior position, lot many things are there where we need to work upon and look. In spite of that, you have taken your valuable time, you have addressed. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Pleasure is entirely all of us. Thank you, sir. Thank you, Divya ma'am. जी सर. Final thank from our side. Thank you. Family. सर आई एम वेटिंग फॉर द फीडबैक आप इनसे काम करवाइए और मेरा काम इतना खत्म हो जाएगा कि जब एक भी बच्चा इनमें काम करने के लिए शुरू हो गया कि आज इस वेबिनार के बाद अगर कोई भी इनमें से सुन रहा है कोई भी इनमें से सुन रहा है वो कहेगा कि नहीं आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू माय ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मेरे सर ने इतना एफर्ट करा है मेरे लिए मेरे टीचर्स ने इतना एफर्ट करा है बिकॉज ये फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें जगाना बहुत जरूरी है ये नहीं है इन लोगों को सब कुछ ये चाहिए कि हमारे पेरेंट्स है तो पेरेंट्स हमारी सब कुछ कर देंगे और जो टीचर्स हैं वो सब कुछ कर देंगे हम क्या करेंगे हमको प्लेटर पे चाहिए नो वी विल नॉट गिव यू एनीथिंग ऑन प्लेटर यू हैव टू वर्क हार्ड वी आर देयर ओनली टू गिव यू डायरेक्शन हम तुम्हें डायरेक्शन डूज एंड डोंट सिखा सकते हैं हम तुम्हें काम करना नहीं सिखा हम तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा तुम इसके बाद भी जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी वो भी बहुत डिफिकल्ट है आउटसाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला अगर तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट नहीं है काम करने की तो ये अभी से स्टार्ट होनी चाहिए इनके अंदर सही बात है learning can be developed at any place or in our institute if they really want to contribute something by their learning experiences then they can easily contribute no need to go out anywhere in the market so definitely it's a really a right word and with this I again thank for your valuable time thank you sir session we enjoyed a lot and thank you to all the participants thank you to the team thank you Divya ma'am or all the Gitanjali fraternity I think we can end this session for today ma'am
Yes, sir. Okay, sir. Bye bye. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much.